Once again, very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher, which comes under your subject social science. So, class, today we all are going to continue our chapter number 3, that is electoral politics. Okay. In our previous class, we started this chapter. We discussed about why there is a huge need for election, and after that, we have gone through the newspaper report, or you can say state assembly election of Haryana in the year 1987, where the Chaudhry Devilal made his party, and after that he won the elections. But after 4 years, Congress came once again. So after that, what? Why do we need elections? क्यों जरूरी है elections? तो बताया था आपको मैंने कि election is a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. After that, we talked about what makes an election democratic. So now our today's topic is it good to have political competition? So elections, as you all know, elections है तो competition भी होगा. पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है. अगर खाली इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट है और हम बोल रहे हैं इलेक्शंस करवा रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता ना. तो इसीलिए इलेक्शंस है तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स भी वहाँ पे रहता है. बिकॉज एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल व्हाट हैपन, it takes the form of competition among several candidates, and if there is no competition, elections will become pointless. कोई भी point नहीं रहता. ठीक है, we already discussed this. So now our constitution makers were aware of these problems. जो भी ये problems हम face कर रहे थे ना, तो काफी aware थे हमारे constitution makers. जो constituent assembly बनी थी आपकी 1946 में, फिर constituent assembly में approximately 3 years लगा के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, हमने इम्प्लीमेंट हुआ था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को. ओके, सो नाउ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ज्यादा अवेयर थे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इलेक्शंस को लेके. सो they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. उन्होंने कौन सा मेथड ऑप्ट किया? उन्होंने फ्री कंपटीशन इलेक्शंस में एज अ फ्री कंपटीशन का वे जो है ऑप्ट किया, जिससे कि हम अपने फ्यूचर लीडर्स को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं. It is an idle word. All political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. उन्होंने कहा अब like obviously we are living in a society, and education is just not only the degree. Education is about experience. We learn from our experiences. We know what is good for ourselves, what is good for what is good for our family. We know it very well. So just like that, political leaders also know what is politics, what is good for the people, and how we can motivate them, and how we can serve them. पॉलिटिक्स का मेन एम है कि हम लोगों को समझ सकें. ठीक है, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग क्या करें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें. Okay, so now besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. Even in our families also, what we see, what you want, your mother didn't like it. ठीक है, आपकी मदर बोलती है नहीं ये अच्छा नहीं. मे बी आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो, आपके फादर को क्रिकेट खेलना पसंद हो. ठीक है, तो हमारी जो डिजायर्स होती है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हमारी डिजायर्स भी बहुत डिफरेंट होती है. बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिशियंस में भी ऐसा ही होता है. वो लोगों को रियलिटी में सर्व करना चाहते हैं, कि रियलिटी में लोगों का भला करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं. बट उन्हें नहीं पता ना हर एक इंडिविजुअल के वांट्स क्या है, डिजायर्स क्या है.
So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. Obviously बात है, लॉजिकल बात है, अगर शॉपकीपर, हम एक शॉप में जा रहे हैं, हम सपोज एक ड्रेस परचेज करने जा रहे हैं, और उस ड्रेस परचेज हम एक शॉपकीपर में गए, एक शॉप में गए, वहां के शॉपकीपर को बोला कि हमें क्या बोलते हैं, हमें ड्रेस दिखाइए, ठीक है, बट वो क्या है, उसने नहीं दिखाई, वो आपको अनसुना कर रहा है, हम 5 मिनट रहेंगे वहां पे, 10 मिनट रहेंगे, ठीक है, उसके बाद हम भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें दिख जाता है ना कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है हमें कपड़े दिखाने में, हमें ड्रेस देने में, तो हम दूसरे शॉप में चले जाएंगे। और वही शॉपकीपर अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको अर्न करना है, तो वो सर्विस भी अच्छे से अच्छे सर्विस देने की कोशिश करेगा अपने कस्टमर्स को। तो आपने बहुत सारी शॉप्स वगैरह में भी देखा होगा, कोई कस्टमर जाते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं, तो दे इवन आस्क फॉर लाइक चाय पानी, ये सब के लिए भी पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अच्छे सर्विसेज देंगे तो ये हमारे कस्टमर्स जो हैं अच्छे बनेंगे। तो जस्ट लाइक दैट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी यही होता है कि अगर वो अच्छे से सर्व कर रहे हैं लोगों को, लोगों की डिजायर्स को समझ रहे हैं, तो लोग भी उन्हें समझेंगे। इवन ही डज नॉट सॉरी सिमिलरली द पॉलिटिकल कंपटीशन may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people। चाहे फोर्सफुली करें, हमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको पावर में आना होता है, बट उनको लोगों के लिए काम नहीं करना होता, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, काफी सारी डिविजन्स वगैरह भी हो जाती है, बट उनको ये लगता है अगर हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो लोग भी हमें एज अ लीडर चूज नहीं करेंगे। सो दे हैव समटाइम्स दे हैव टू हेल्प फोर्सफुली उनको काम करना ही पड़ता है, ठीक है। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस कार्टून और कैरिकेचर मेंशन्ड इन योर बुक, ठीक है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्या लिख रहा है, जो हमारी लेफ्ट साइड में, आप लेफ्ट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। तो नाउ ये क्या बोल रहा है, मेरे पास वोट है। सो इन दिस कार्टून what this cartoon is trying to represent here, it is trying to represent that कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है वो बोल रहा है मेरे पास तो है ना बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज है, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, बट वही कॉमन सिटीजन क्या बोल रहा है, आई हैव द वोट, मेरे पास वोट है, बिकॉज वोटिंग मिलेगी, वोट्स होंगे, उसी से ही तो क्या होगा, उसी से ही आप लीडर बन सकते हो ना। अगर सिटीजन्स ने आपको चूज नहीं किया है, आपको वोट नहीं दिया है, तो आप चाहे कितने ही अच्छे हो, ठीक है, चाहे कितनी ही योजनाएं हैं आपके पास, प्रोग्राम्स है, वो वर्क नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट नेक्स्ट कार्टून देखिए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन। देखिए एक मिनिस्टर है, वो क्या कर रहा है, प्रोमिसेस, एक आपका बैग है उसमें प्रोमिसेस भरे हुए हैं, फुल ऑफ अ बैग फुल ऑफ प्रोमिसेस, एंड इन अ फॉर्म ऑफ एन एनिमल देयर इज अ वोटर। तो और उसकी क्या है, सलाइवा जो है वो हमें दिख रहा है, मतलब कि उसको भूख लगी है, ठीक है, रोटी के फॉर्म में क्या दे रखा है, प्रोमिसेस है, और वोटर जो है काफी भूखा है। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि प्रोमिसेस तो मिनिस्टर्स इतने सारे कर देते हैं, बट हमें प्रोमिसेस में से 100 प्रोमिसेस में से कुछ एक प्रोमिस जो होता है वो ही फुलफिल हो सकता है। ये चीज जो है पॉलिटिकल लीडर्स और वोटर्स का जो है वो रिलेशन बता रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है, वही ये इलेक्शन के बाद की सिचुएशन हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे वोटर्स और पॉलिटिशियंस का क्या शो कर रखा है, वोटर्स एंड पॉलिटिशियंस का रिलेशन शो कर रखा है। ओके, so now what is our system of election? Now your next topic is what is our system of elections. So electoral constituencies. First of all, you have to understand the meaning of constituency. Constituency क्या होता है? अगर हिंदी में बोलूं तो constituency है चुनाव क्षेत्र. Suppose this is
दिस इज एन एरिया, ठीक है, दिस इज अ स्टेट, और इस स्टेट को सेवरल पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक पार्ट के लिए एक एक लीडर चूज करते हैं। सपोज एक एक लीडर चूज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। सो दिस इज अ कंट्री और अ स्टेट, और ये जो पार्टीशन है वो क्या कर रखा है, वो कॉन्स्टिट्युएंसी है, ये एक क्षेत्र है, एक एरिया है, जहाँ पे आपका, जहाँ के इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम लीडर को चूज करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ स्टेट एंड द स्टेट इज डिवाइडेड बिटवीन 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज, मतलब यहाँ पे 8 पार्ट्स है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स है, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं। तो दीज आर कॉन्स्टिट्युएंसीज। ये छोटे लेवल पे मैंने आपको बताया, वैसे ही बिगर लेवल पे है। आप सबने सुना होगा ना, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी सीट्स आर देयर, हु विल टेल मी हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, कितनी सीट्स है लोकसभा में, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा? Yes, anybody wants to answer? How many seats are there in Lok Sabha? Yes, Divyanshi Sharma. And good afternoon. Good afternoon, Divanshu. Yes, beta. Yes. 543. Yes, very good. At present, there are. At present, there are 543 seats in Parliament in Lok Sabha. Okay, and these 543 क्या है 543? ये 543 इंडिया की कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। इंडिया को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया ना, ये एरिया है और इसको क्या है, डिवाइड कर दिया, और हर एक एरिया के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया। तो ये ऑल ओवर इंडिया में क्या है, ऑल ओवर इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज है, 543 एरियाज है, जहाँ के लिए हम 543 रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को चूज करते हैं। ओके, sorry. So in our country we follow an area based system of representation. हम area based system of representation को क्या करते हैं, चूज करते हैं। So in our country we follow an area based system of representation. हम representation के लिए area आपको select करते हैं कि ये बीकानेर का एरिया है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ लोकसभा में बीकानेर से कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो बीकानेर से रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। तो ये बीकानेर पूरा एरिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी है। ओके, सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस। These areas are called electoral constituencies. Our whole country is divided into different areas. I already told you, suppose this is a country और इसको अलग अलग parts में क्या कर रखा है, divide कर रखा है अलग अलग parts में, और different different areas के election के purpose से, और इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज बोलते हैं। The voters who live in an area elect one representative. Suppose हमें हमारी लोकसभा बीकानेर से हमें लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, तो वोटर्स जो है वो क्या करते हैं, वोटर्स चूज करते हैं, वोटर्स इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को। एक ही, ऐसा नहीं है कि हमें 5 पसंद है, हम 5 रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नहीं, हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। So in Lok Sabha elections there are 543 constituencies. Okay, so the representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है फॉर द लोकसभा इलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Every vote should have equal value. One vote is equals to one value. ऐसा नहीं होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनके पास 2 वोट्स होंगे, और कॉमन सिटीजन है तो उनके पास only 1 vote होगा। No, every vote should have equal value. 1 vote equals to 1 value. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency. We talked about country, ठीक है, वहाँ पे हमने different constituencies में हमने क्या कर दिया, उसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली एक स्टेट है, टोटल स्टेट में हमारा जो है डिवीजन होता है, ठीक है, 30। फॉर एग्जांपल इन राजस्थान वी हैव
33 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज बने हुए होते हैं, जैसे ईस्ट बीकानेर, वेस्ट बीकानेर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब हम एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, तो हम एक एमएलए को चूज करते हैं ना, कि हमारे एरिया का एमएलए कौन है। जैसे ईस्ट और वेस्ट है, हमारे ईस्ट की एमएलए, वेस्ट की एमएलए, तो वैसे ही हर एक स्टेट को जो है स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड किया जाता है, और उसको हम बोलते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। जिसे जिसे भी हम इलेक्ट करते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का, उसे हम एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, ठीक है। वैसे ही अब म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, तो हर एक विलेज को क्या है, डिवाइड किया गया होता है। जैसे बीकानेर है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है ना, कि 18 नंबर वार्ड्स, 12 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड, तो ऐसे वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये वार्ड भी क्या होता है, एरिया वाइज होता है, ठीक है। सो ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, और हर एक वार्ड से, पार्षद का नाम सुना होगा कि ये यहाँ हमारे यहाँ के पार्षद है, तो हर एक वार्ड से एक मेंबर को क्या किया जाता है, गांव हर एक मेंबर को चूज किया जाता है, और वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। ओके, सो हमने देखा कि क्या हो गया, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो पूरी कंट्री को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या हो रहा है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, सपोज राजस्थान है, राजस्थान में जितने राजस्थान में क्या हुआ, स्टेट असेंबलीज को हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया, और वहां के हम क्या कर रहे हैं, एमएलए चूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर पर्टिकुलर एक एरिया है, और उसमें हम क्या करते हैं, हम पार्षद चुनते हैं, ठीक है। So now just look at this. This is an example given in your book. Gulbarga Lok Sabha constituency and Gulbarga Kala Gulbarga district in Karnataka. So now just look at this. देखो गुलबर्गा दक्षिण, ये एक एरिया है, या फिर एक उसको क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। देखो महाराष्ट्र के कर्नाटका का एरिया है एक, और उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर रखा है. So why is the boundary of the Gulbarga Lok Sabha constituency not the same as the district boundary of the Gulbarga Kalaburgai? Draw a similar map of your own Lok Sabha constituency. अब देखो ये एक आपका एरिया है, और उसको सेवरल उसमें क्या कर रखा है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है. ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. कि अब देखो एक ही एरिया है, ये सेम एरिया है, बट इसी एरिया को और ज्यादा क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो डिवीजन हो जाता है और ज्यादा हो जाता है. So how many assembly constituencies are there in Gulbarga Lok Sabha constituency? You have to find out this. And is it the same in your own Lok Sabha constituency? ये आपका होमवर्क है. आपकी कौन सी है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव टू फाइंड आउट. और कितनी है और गुलबर्गा लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट है आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो हम हमारी कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. So till now, if you have any kind of question, please. So reserved constituencies. Reserved. कभी टर्म सुना है रिजर्व्ड का? What is the meaning of reserved? रिजर्व्ड क्या है? ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये तो रिजर्व्ड है, ठीक है. या फिर सुना होगा कि रिजर्वेशन है, एजुकेशन में रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरीज में रिजर्वेशन है,
उनको जॉब्स मिल जाती है, ऐसे ऐसे सुना होगा बहुत बार, ठीक है। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी क्या होती है, रिजर्वेशंस होती है। Our constitution entitles every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. Our constitution give this right कि as a citizen of India we have this right to elect our own representative, and we have this right कि हम अपने representative को elect करके क्या करें, choose करें. So but the constitution makers were worried at the same time. वो बहुत ज्यादा दुखी भी थे, परेशान भी थे, सोच में भी थे. क्वेश्चन arises why? So the constitution makers were worried about it because certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assemblies. कुछ weaker section है जो जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कुछ वीकर सेक्शंस भी थे. उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट काफी चलता था, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो कुछ वीकर सेक्शन थे जो माइनॉरिटी में थे, या जो कुछ यू कैन से अकॉर्डिंग टू द सम पर्सन्स, कुछ लोग जो थे सो कॉल्ड वीकर सेक्शन थे, उनको इलेक्शन में जगह नहीं दी जाती थी, ठीक है, वो इलेक्ट नहीं हो सकते थे. तो उन्होंने क्या निकाला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल सिस्टम निकाला, सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. वीकर सेक्शन में आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको हम नॉर्मली शेड्यूल कास्ट में क्या होता है, जो दलित वगैरह बोला जाता था, हरिजन्स वगैरह बोले जाते थे, वो वाले पर्सन्स, और शेड्यूल ट्राइब्स में जो आपके आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, जो रहते थे, ठीक है, ऐसे एरियाज में, इन ऐसे लोगों के लिए क्या किया था, शेड्यूल कास्ट के लिए, वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक स्पेशल सिस्टम लेके आए थे. सो एट प्रेजेंट वी हैव 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट. 84 सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है, रिजर्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. जैसे लोकसभा में टोटल सीट्स आपकी 543 है, 543 में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. और ये जो रिजर्वेशंस होती है ना, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. वो रिजर्वेशंस जो है देखी जाती है कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कितने रिजर्वेशन होंगे, एंड ऐसे करके वो प्रॉपर एक कमीशन बनती है. उस कमीशन को हम डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं. डेलिमिटेशन कमीशन ये काम करती है कि इस पर्टिकुलर राजस्थान से क्या कौन सी रिजर्वेशन होगी, कितनी रिजर्वेशन होंगी, मध्य प्रदेश से कितनी रिजर्वेशन होगी, ये काम होता है डेलिमिटेशन कमीशन का. सो एट प्रेजेंट यू हैव टू learn, you have to remember this. At present there are 84 seats reserved for the scheduled caste in the Lok Sabha and 47 seats for the scheduled tribes. So the system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. District और local level पे भी क्या हुआ था, ये reservation का जो system था extend हो गया. जैसे कि OBCs के लिए, minorities के लिए, इनके लिए भी क्या हो गया, extend हो गया कि इस particular area में, local area में जो हमारा सरपंच बनेगा, जो हमारे हेड बनेंगे या पार्षद बनेंगे, वो माइनॉरिटी सेक्शन से होगा, या फिर वो यू कैन से कि वो OBC से होगा. अगेन depending upon the population of the particular state. So in many states, seats in rural, that is panchayat, and urban, that is municipalities and corporation. विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में पंचायत होती है, और अर्बन जैसे टाउन्स वगैरह हैं, सिटीज वगैरह है, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है. सो लोकल बॉडीज है ये. अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज है और रूरल एरिया में पंचायत है. और ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डिवीजन जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, right? So local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. I already told you about this. Okay, so 1/3 of the seats are reserved in urban and local bodies for women candidates. Urban और local government में, urban और local bodies में 1/3 seats किसके लिए reserved है, 1/3 seats reserved है वुमेन के लिए. किसके लिए, वुमेन के लिए. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, रिमेम्बर दिस. 1/3 of the seats are reserved for women.
candidates in rural and urban local bodies. So now just look at this map of India. ठीक है, so just look at this. There are total 543 constituencies. जो आपका white shaded area आप देख रहे हो, this white shaded area is for general category. ठीक है, unreserved बोल सकते हो, general बोल सकते हो, and total 412 आपकी general है, unreserved है. रिजर्व में जो मरून कलर है, रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टोटल आपकी कॉन्स्टिट्युएंसीज है 84. ठीक है, टोटल रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है? 84 एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. एंड रिजर्व सीट्स फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो ग्रीन एरिया से शेडेड एरिया है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसे एरियाज क्या है? रिजर्व है. टोटल कॉन्स्टिट्युएंसीज कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है आपकी? रिजर्व 47. टोटल 47 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो है वो रिजर्व है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस स्टेट कॉन्स्टिट्युएंसीज. अब हर एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है, हर एक यूनियन टेरिटरी में कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है, यहाँ नंबर मेंशन किया गया है. इफ वी लुक एट द कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में टोटल स्टेट कॉन्स्टिट्युएंसी टोटल कॉन्स्टिट्युएंसीज है 25. वही अगर हम उत्तर प्रदेश की देखें तो 80 कॉन्स्टिट्युएंसीज है. वही हम मिजोरम की देखें तो ओनली 1 ही कॉन्स्टिट्युएंसीज है. सो देयर गोवा की देखो, गोवा की भी ओनली गोवा में 2 है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है. आप क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मैम राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया. तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज क्यों है? बिकॉज उत्तर प्रदेश इज द एरिया where the highest number of people live. ठीक है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन जो है रहती है, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है. दैट्स व्हाई 80 कॉन्स्टिट्युएंसीज आर देयर. कि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी पॉपुलेशन है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाते हो. ठीक है, so these are some of the questions which we will discuss tomorrow. This is your homework, you have to do it and I will ask you some questions about it. Okay, this is all about today. Thank you so much for joining the class, everyone. Please take care of yourself. Bye bye.